Hello everyone. I hope I am again audible to everyone and I hope you guys can hear me out. We'll be waiting for a few moments so that everybody can join and then we can start the discussion what we have today in our topic. We'll be waiting for a couple of minutes. Right. I hope I'm audible to everyone and we'll be waiting for a few minutes, again, a minute or so that people can join us and then we can start the conversation for which all of us are present here. Okay. I think we can now start with the discussion and start with why all of us are here. First of all, I would really like to thank and express all my gratitude to Fitzo app for having me here. Now, you all might be wondering, who am I? So, my name is Vanchika Khurana. I am a life coach, an NLP practitioner, and a hypnotherapist. And we all are here to discuss a very important matter, that is mental health at work. But before that, I would just want to tell you all about a wonderful offer that Fitzo is currently offering. So, Fitzo is a wellness transformation application that is online and it brings both physical health and mental health at one platform. So, you don't have to go around, you don't have to go to the gym, you don't have to go to a trainer, you don't have to seek a nutritionist. And Fitzo has very wonderfully have all the trainers right on one platform and you can just download the app and check it out now. So it also has some really interesting transformation programs that are present. And currently it has this one brilliant idea of they have a 7-day trial workshop, so wherein you get free sessions, free live sessions with the nutritionist. You can get hands on online yoga sessions. It is going to be a group session. You can get your diet that is very client specific. Whatever you need in your diet will be there. And various strength training sessions are also being performed. If you like it, you can further buy it for 999 and it will be for 1 month. So I think it's a great offer and you all should definitely get your hands on the app now. Okay, so people have started joining and I have just talked about the app. Now I think we're going to discuss about the topic for which we are here for, which is mental health at work. Now all of you must be thinking कि काम में mental health कैसे relate करता है. Now it does. So if you feel that while working कभी कभी you feel that you are overwhelming, you feel low on confidence, you can also feel that you're not getting enough recognition. आपको अपने काम करने में आपको लगता है आपके कलीग्स आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर आपको अच्छे से पे नहीं कर रहा है आपके एफर्ट के जितना. कई बार आपको एक सोशल सर्कल मेंटेन करने को नहीं मिलता है अपने काम में. और देर आर ऑल्सो टाइम्स वेन यू जस्ट गेट मोनोटनस. सो मे बी समथिंग लाइक आप अपना काम में एक रूटीन फॉलो कर लेते हैं और उस रूटीन में चेंज ना आने की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो सकती है. So all these factors are there that affects our mental health. And if we keep ignoring these factors, this will definitely backfire. So it's important that we pay attention to it right from here, right from the beginning, right from the start, so that वो हमें कभी backfire नहीं कर पाए. Right? So I hope the session brings some good to you all and you start practicing some things at your own house. Okay, so first of all, like I just mentioned, mental health कैसे हमारे stress को relate कर सकता है work के साथ. I think all of us here are working and we all understand that how crucial it is to understand the fact that stress is a major part of our work, right? Tensions, workloads, pressures, etc. etc. It is all there. अब हम कुछ तरीके जानेंगे जिनसे हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं.
So the first and very most important thing is you all have to bring your boundaries together. What do I mean by boundaries? Now, for example, आपको आपका बॉस, आपको आपका कलीग, इवन नॉट इन वर्क लाइफ, समवेयर इवन इन द पर्सनल लाइफ, आपको आपका कोई फ्रेंड एक ऐसा काम दे देते हैं जिसको करने के लिए अभी आप फिट नहीं हैं, आप फील नहीं कर रहे हैं कि मैं अभी वो काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं? नाउ उस टाइम पे वी ऑल हैव टू स्टार्ट सेइंग नो. Like saying no doesn't make you negative. Saying no makes you aware of your own boundaries. अब आप ना नहीं कहेंगे तो आप अपने ऊपर प्रेशर लेते रहेंगे, राइट? सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट सेइंग नो टू थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू, राइट? एंड समटाइम्स इट्स नॉट जस्ट दैट यू कांट डू, आपसे हो नहीं पा रहा है. समटाइम्स इट्स just that you want a mental space for yourself and you don't want to do some work. It's okay if you reply the person politely that you can't do it or you don't have to do it or you need some more time. So you have to start asking for what you need, right? That is the one and very important step that you have to say. That is that you have to learn to say no politely, right? Now अब हम no बोल कैसे सकते हैं? I often suggest my clients that whenever you want to say no, it's better that you give an alternative around it. So for example, अगर मैं किसी को मना कर रही हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, तो मैं उन्हें एक ऑल्टरनेटिव देना चाहूँगी कि कौन ये काम कर सकता है, राइट? तो मैं उन्हें एक ऑल्टरनेटिव स्लॉट ऑप्शन दूंगी, उससे मेरा नो बोलना पोलाइट लगेगा और सामने वाले की मैं अनसेड हेल्प भी कर दूंगी कि आप कहाँ इस काम को लेकर के जा सकते हैं. That is a one way of saying no. Other than that, okay, a very important thing while we say no is that we are very apologetic about it. So, we start saying sorry to the person or we start feeling guilty for saying no. Please don't do that. Saying no is not negative. Saying no is building your own boundary frames and it doesn't make you look like a bad person. For example, there was this very small incident that happened with me a couple of years back. So I was with one of my professors and there was a bystander. So एक सामने से एक random आदमी चल करके आया and he asked कि आप मुझे XYZ जगह का रास्ता बता सकते हैं. Now, I was with my professor and we were moving in a two-wheeler. So we asked, like, he asked him, and my sir very politely said that yes, all you have to go is like you have to just go straight, वहाँ आ जाएगा. Now I asked my teacher, like, are you really sure that this is the place? He said, I'm not sure, but I think ऐसा ही होना चाहिए, right? So हम एक बिल्कुल अनजान आदमी को भी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं तब जब हमें खुद को नॉलेज नहीं होती है उस चीज़ की. हम अक्सर फ्लाइट्स में सुनते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी हेल्प करनी है, बाद में ही हम किसी और की हेल्प कर सकते हैं. तो प्लीज़ ना बोलने में ना घबराए, नंबर 1. नंबर 2, स्टॉप बीइंग अपॉलोजेटिक अबाउट इट. So, you can't always say sorry about not knowing things. It's okay. हम कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, हम कोई गूगल नहीं है कि हमें सब कुछ आता होगा. I might be good in one thing and I might not be good in the other. So that's okay. Stop saying sorry for it. इसी से जुड़ कर के एक थर्ड बात आ जाती है कि अगर हम किसी चीज़ में गुड नहीं हैं अपने काम में तो हम हेल्प कैसे मांगे. नाउ हाउ डू वी आस्क फॉर हेल्प when we are not good at some task or when we are uncomfortable doing one task. For instance, it was seen that जब ऑनलाइन पे काम शिफ्ट हुआ था तो बहुत सारी टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स को प्रॉब्लम आई थी. बट द प्रॉब्लम इज दैट आस्किंग फॉर हेल्प, हमें लगता है कि हम छोटे बन जाएंगे, हमें लगता है कि वी विल फील स्मॉल. नाउ दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू चेंज. इफ यू कैन चेंज इट, दैट्स रियली गुड. Asking for help doesn't make you a small person, rather it helps you to increase your own knowledge, right? And now how do we ask for help? अगर हमें खुद को हेल्प मांगने में अजीब लग रहा है तो हम हेल्प कैसे मांग सकते हैं? वर्क प्लेस में हो सकता है हेल्प मांगने पे सामने वाला हमें जजमेंटल नज़रों से देखे या कोई हमें सोचे दैट इसे तो ये काम आता ही नहीं है या XYZ कुछ भी एजम्पशंस हम सोच सकते हैं. तो उसमें हम कैसे करेंगे? All we have to do, it's a magical trick. All we have to do is just change our vocabulary. Now, how do we change our vocabulary? When you say help, इसको हम चेंज करेंगे एक वर्ड से, जो हम बोलेंगे सपोर्ट. हम वर्ड यूज करेंगे सपोर्ट / असिस्टेंस. नाउ
I might say that मुझे आपकी एक मदद की ज़रूरत है, मुझे आपकी एक हेल्प की ज़रूरत है। हम इस लाइन को चेंज करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर असिस्टेंस इन अ टास्क। When you say support and assistance, it is a very positive word and it makes you feel empowered, right? So, changing the dictionary, changing your words can be very helpful sometimes. So, first we learned that we have to start saying no. How do we say no? Start saying very politely and give people an alternative, that why are you saying no, and how can the person can get their work done. Second thing is, don't be apologetic about it, don't feel guilty about saying no. The third very important thing is that you all, yeah, sorry, my camera was just okay, yeah. So third very important thing is that you have to ask for help if you don't know a thing. And you can ask by saying that support, you can ask by using the word assistance, right? आप असिस्टेंस वर्ड का यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक कोलैबोरेटिव टास्क है जिसमें आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, सामने वाला अपनी मेहनत कर रहा है। हेल्प बोलना कई बारी हमें नेगेटिव लगता है, हमारा एस्टीम लो हो जाता है। सो दीज आर द टू ट्रिक्स दैट यू ऑल कैन परफॉर्म. Now we'll jump to the other things, which is now this is a very important and a very something that I really like to talk about. That is that we don't allow our body, we don't allow our mental health to take rest. How don't allow? Like, you might disagree with my thing, but अनफॉर्चुनेटली वी हैव अ हैबिट कि अगर हम किसी काम में एकदम इनग्रॉस्ड हो गए होते हैं, वॉट वी डू इज दैट वी अवॉइड जो हमारी बॉडी हमसे मांग रही होती है, वी अवॉइड सिग्नल्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हंग्री एंड आई एम डूइंग सम टास्क, वॉट विल आई डू इज I will start ignoring that I am hungry. If I want to sleep for a while, but I have some work in my hand, I will ignore that I have to sleep, right? So, मैं कई बारी खाना खाना भूल जाऊंगी अपने काम करते करते. मैं कई बारी मुझे नींद आ रही है बट मैं उसे इग्नोर करती रहूंगी. दीज आर स्मॉल साइंस जो हमारे लिए आगे बर्नआउट का कारण बन सकते हैं. बर्नआउट इज जब हमारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारा बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग कंडीशन हो जाती है, उसे हम बर्नआउट कहते हैं. तो अगर हम अपनी बॉडी को, अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, अगर हम अपनी बॉडी के साइंस को इग्नोर करते रहेंगे, तो बर्नआउट के चांसेस बढ़ने लग जाते हैं. एंड नाउ हाउ डू वी टेक केयर ऑफ इट? लाइक, हम अपने मेंटल हेल्थ का कैसे ये केयर करें, या हम अपनी फिजिकल बॉडी पे कैसे ध्यान दें? फॉर मेंटल हेल्थ देर इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग दैट गूगल हैज़ नाउ डन. जब से हमारे काम ऑनलाइन शुरू हुए हैं, वी हैव जूम एप्स, वी हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एवरीथिंग. सो ऑल यू हैव टू डू इज दैट यू हैव योर फोन विथ यू और यू हैव योर लैपटॉप्स. आपको अपने फ़ोन में गूगल पे ब्रीथ सिर्फ टाइप करना है और उससे ब्रीथ का एक छोटा सा टैब खुल जाएगा. Now, what do you mean by tab and how do you use it? So that tab is very helpful while you are working on your online platform. It will help you very immediately and it will actually ask you to breathe. So while you are doing your work, a small notification will pop up that will remind you of breathing, right? So what happens is that इफ़ यू आर डूइंग योर वर्क, आप अपना काम टाइपिंग कर रहे हैं, आपके सामने एक छोटा सा नोटिफिकेशन खुल जाएगा जो आपको याद दिलाएगा. आई जस्ट लॉस्ट कनेक्शन फॉर अ वाइल. सो एज वी वर डिस्कसिंग दैट वो आपको ब्रीदिंग के लिए बोलेगा. तो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग दैट गूगल हैज़ डन फॉर ऑल ऑफ अस. एंड आई थिंक कि हम उतना तो कर ही सकते हैं. हम अपने सिर्फ गूगल पर ब्रीथ टाइप करेंगे, उस पिन को उस टैब को अपने गूगल से पिन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे को कॉन्स्टेंटली मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें ब्रीदिंग के लिए ब्रेक लेना है, राइट? नाउ if you think that this is being too tedious, you can't find the tab or anything, you can simply do one thing. You can have your own alarm systems. You can have alarms, you can have a timer. After every 1 hour, that alarm can ring and help you to, So I do this if I have to drink water. I forget drinking water when I'm too anxious. I forget drinking water when I'm too stressed. So what I do is that I have this one alarm system that reminds me after every hour that I have to drink water, I have to breathe normally, I have to take control over my body. And I think this works really well. Now, how do we breathe? That is the question.
अगर हमें ब्रीदिंग करने के लिए रिमेम्बरेंस आ रही है, अगर हमें कोई बोल रहा है हमें ब्रीथ करना है, तो ब्रीथ तो हम नॉर्मली कर ही रहे हैं, उसमें ऐसा क्या चेंज करें कि हमें हेल्प हो. Now we'll do a triangle system of breathing. So that involves 3 steps. Number 1 is that you breathe in deep for 3 seconds. Number 2 is that you hold that breath for 3 seconds. And the third step is that you breathe out for that 3 seconds, right? So I think now is the time when you start your breathing activity. अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप उसे 2 मिनट के लिए सिर्फ पॉज कर सकते हैं और ये ब्रीदिंग एक्टिविटीज 3 times रिपीट कर सकते हैं. This is the triangle breathing system. So what you have to do is, I'll just do it along with you all guys. Right, so we will breathe in for 3 seconds. We will hold for 3 seconds. We will breathe out for another 3 seconds. Perform this activity thrice while you are doing, and you will instantly feel the difference. अगर आप ये एक्टिविटी कर चुके हैं तो हम आगे नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव करेंगे, विच इज़ दैट समटाइम्स इट्स ऑफन कि हम बैठे बैठे थक जाते हैं अपने ऑफिस में. वी हैव ऑफिस चेयर्स, हम बैठे ही रहते हैं, पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं. सो इट्स I'm so sorry for the network error today. Yeah. So हम काफ़ी बारी बैठे रह जाते हैं अपनी चेयर्स पे और हम भूल जाते हैं कि बाहर भी एक लाइफ है. सो शॉर्ट ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है while you are working. If you think that your office has a space wherein you can take a walk, even if it is a small thing like आप सिर्फ वॉशरूम तक उठकर चले गए, या आपने सिर्फ पानी के लिए ब्रेक ले लिया, या कई. Right. Am I audible? If someone is here, can you please let me know? And I'm extremely sorry about the messed up internet connection. Thank you for letting me know that I'm audible and it is effective. Okay. So another thing is that we're going to talk about is that हम थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स लेते रहे काम में. अगर आपको लगता है कि आपके ऑफिस में वो स्पेस नहीं है कि आप उठ करके कहीं जा पाए, तो हम क्या कर सकते हैं? वेरी सिंपल एक्टिविटी, एंड आई थिंक ये इमिजिएटली हमारे को बूस्ट अप कर देता है. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज विल परफॉर्म अगेन 3 सिंपल स्टेप्स, and we just have to use our hands here. If someone is here who is in a मैनेजेरियल पोस्ट, या आपको लगता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे फ्रेशन अप कर सकते हैं काम के बीच में, तो आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक योर फिंगर्स एंड से येस येस येस. स्टेप 1. स्टेप 2, yes yes yes. Step 3, yes yes yes. These are the 3 simple steps that you can follow and it instantly gives you an energy. So you know, कभी आप काम से अपने बोर हो गए हैं या आपको लग रहा है उठ नहीं पा रही हूँ मैं, तो आप क्या कर सकते हैं? yes yes yes, yes yes yes, yes yes yes. ये आपको इंस्टेंटली बूस्ट अप करेगा, एनर्जाइज करेगा. एंड आप देखेंगे कि अगर आप एक मैनेजेरियल पोस्ट पे हैं और अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ये करने में हेल्प करेंगे, तो सारे ये काम करेंगे टुगेदर. मान लीजिए कि आप आफ्टर एवरी 1 आवर, आफ्टर एवरी 30 मिनट्स ये करवाते हैं उनसे, तो सब एकदम से एनर्जेटिक हो जाएंगे एंड इट इज़ रियली प्रोडक्टिव. यू नो, आप देखेंगे कि आप बहुत प्रोडक्टिव हो रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी एम्प्लॉयज़ बहुत एनर्जेटिक हो रहे हैं एंड अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर विल बी क्रिएटेड. So these are the some techniques that we all discussed about today. The last technique that we are going to discuss is a mindfulness technique. हम ऑफिस सेटअप में बैठे बैठे आंखें खोल करके मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं? अगर आपको लगता है योर ऑफिस हैज़ अ रूम दैट गिव्स यू अ स्पेस टू मेडिटेट, दैट वर्क्स रियली वेल. जस्ट गो देयर, हैव योर ओन टाइम, अपने आप के बारे में सोचें, अपनी बॉडी के बारे में सोचें. बट अगर आपको लगता है कि आपके पास वो स्पेस कहीं नहीं है, तो आप अपने ऑफिस सेटअप में बैठे बैठे, अपनी ऑफिस चेयर में बैठे बैठे कैसे अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं, कैसे मेडिटेट कर सकते हैं. सिंपल टेक्निक. I want you all to understand one thing, that for this one thing you have to keep your foot down. बिल्कुल ग्राउंड पे आपका फुट टच होना चाहिए, आपकी बॉडी ग्राउंडेड होनी चाहिए. स्टेप 2, योर बैक शुड बी एलिवेटेड. सो आप ऊपर की तरफ अपने आप को पुश करके बैठे. स्टेप 3 इज दैट योर शोल्डर्स शुड बी रिलैक्स्ड. स्टेप 4,
आपके हाथ इस पोजीशन में आपकी थाइस पर रहेंगे। मेरी थाइस कैमरा में दिख नहीं रही है, बट हमें अपने हाथों को इस पोजीशन में अपनी थाइस पर रेस्ट करवाना है, खुला रख करके, राइट। हम ऐसी पोजीशन में बैठेंगे, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जो ट्रायंगल ब्रीदिंग अभी अभी हमने की है 3 सेकेंड्स की, वो तीनों स्टेप्स 3 बार करेंगे। आफ्टर डूइंग दैट हम अपने आप की बॉडी में अवेयरनेस जागेंगे। हम आइज क्लोज करना चाहें तो आप आइज क्लोज कर सकते हैं। अगर आप आइज ओपन रखना चाहें तो आप अपनी ओपन आइज के साथ अपनी बॉडी के अंदर झांकेंगे। आप अपनी बॉडी की जितनी भी टेंशन है उसे फील करेंगे और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि मेरी बॉडी में सबसे ज़्यादा टेंशन रिलीज मेरे शोल्डर्स से होती है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरी बॉडी के शोल्डर्स जो है वो एकदम नीचे हो जाए, एकदम नीचे की तरफ मैं अपने आप को पुल करूंगी, एकदम कंफर्टेबल पोजिशन में ऐसे ढीला छोड़ दूंगी। या आपको लगता है कि ये माउथ एरिया जो है यहाँ बहुत टेंशन बिल्डअप हो रहा है, तो हम इस एरिया को रिलैक्स छोड़ेंगे, राइट। अगर आपको लगता है कि आपका रिलैक्सेशन टेक्निक ऐसे वर्क नहीं कर रहा है, तो सेकेंड स्टेप जो कर सकते हैं वो है कि आप इंस्टेंट अपनी बॉडी के अंदर प्रेशर जनरेट करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि मेरे शोल्डर्स बहुत टेंस्ड हैं, तो मैं अपने शोल्डर्स को ऐसे स्क्वीज कर लूंगी। मेरे हाथ बहुत टेंस्ड है, मैं अपने हाथों को ऐसे स्क्वीज कर लूंगी। मेरा फेस बहुत टेंस्ड है, मैं अपनी आईज को ऐसे लॉक कर लूंगी। 3 सेकेंड्स तक ऐसे ही लॉक रखूंगी और फिर एकदम से कंफर्टेबल पोजिशन में छोड़ दूंगी। ये प्रोसेस 3 बार करें एंड यू विल फील दैट आपकी बॉडी की जितनी टेंशन है वो बाहर की तरफ निकल रही है, वो सारी टेंशन निकल रही है आपकी बॉडी से। जैसे जैसे आप एक्सेल करेंगे आपकी बॉडी की टेंशन भी रिलीज होती जाएगी, आपकी बॉडी की टेंशन भी बाहर निकलती जाएगी। सो दीज आर सम स्मॉल ट्रिक्स एंड टिप्स दैट आई थिंक हेल्प यू। एंड अगर आप इससे अपनी लाइफ में रूटीन में करने लगेंगे फॉर 20 to 25 days भी, अगर आप इसे रेगुलरिटी में करते हैं बाय कीपिंग अलार्म्स और बाय हैविंग दैट टैब अराउंड यू, एनीथिंग विल वर्क। तो आप देखेंगे कि विद इन 30 days के स्पैन के अंदर ये चीज़ें आपकी लाइफ का एक पार्ट बनने लगेंगी, ये चीज़ें आपकी लाइफ के लिए एक हैबिट बनने लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में बैठे होते हैं तो हम अपना फ्रिज ऑफन चेक करते हैं, हम वी वॉक अराउंड एंड वी जस्ट ओपन आवर फ्रिज इस नई चीज़ में कि क्या पता कुछ नया निकल जाए। ये हमारी लाइफ का एक पैटर्न बन गया, ये हमारे अंदर एक हैबिट बन गई है, राइट। तो आप ऐसी हैबिट्स को अपने अंदर खुद डाल भी सकते हैं। आप अपने अंदर ब्रीदिंग टेक्निक की हैबिट को डाल सकते हैं, आप अपने रेस्पिरेटरी को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक्स और भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, but this is the most basic technique that you can use and it is very effective. Start taking control of your body, your mind. That is the ultimate thing that you all can do. At work I have told you all कि आप कितने छोटे छोटे प्रोसेसेस से अपने वर्क के स्ट्रेस को, अपने मेंटल हेल्थ को काम के दौरान थोड़ा थोड़ा करके मैनेज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही हों। I think we can now have the Q&A session. If anybody has any question around, you can please type it in here and let me know if you have any comments or anything that you want to ask about mental health at work. I have a question in my personal email. Okay. So please अपना question यहाँ type करें, but it's okay if you feel that you're not comfortable. You can always DM Fitzo app का page पर. And the question is that, is stress always bad? I think I have answered this question in my last session also, that stress is not always bad. For example, हम एग्जाम्स के लिए पढ़ाई में मेहनत कब करते हैं? वी ऑफन डू मेहनत जब हमें स्ट्रेस होता है, राइट। सो स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज बैड, इट हेल्प्स अस टू बी फंक्शनल इन लाइफ। वो हमें काम करने पर और मूव रहने पर लाइफ में मजबूर करता है। तो कुछ स्ट्रेस जो कि पॉजिटिव स्ट्रेस होते हैं उन्हें हम अपनी टर्मिनोलॉजी में यू स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज बैड, इट कैन बी गुड टू। हाउएवर, अगर हम अपने स्ट्रेस के लिए कोई बाउंड्री नहीं बना रहे हैं, वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बॉटल अप होता जा रहा है, in that scenario it definitely gets worse and it doesn't become helpful at that scenario. So you have to if you are interested to know more about stress, you can
ping to my last video and you can see कि हमें स्ट्रेस के बारे में कैसे पता चलता है, कब हमारी बॉडी में स्ट्रेस आने लगता है एंड ऑल दैट. Anybody else wants to ask any other question can definitely do so. और अगर यहाँ पर जो मेरी इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं कोई सीनियर लेवल पर हैं, तो आप प्लीज़ अपने ऑफिस में एक स्पेस बनाना शुरू करें जहाँ पर लोग अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना शुरू करें, जहाँ पर लोग कंफर्टेबल फील करें अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए, या एक छोटा सा मेडिटेटिंग रूम. इफ़ यू कैन नॉट हैव अ स्पेस देन एटलीस्ट हैव अ थेरेपिस्ट अराउंड हु कैन हेल्प योर एम्प्लॉयज़. और इससे आपकी कंपनी को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा. And I think yes, that is something very important that we all have to do. Anything else that anybody wants to discuss or talk about? The platform is open for your questions. Also, thank you all for being a lovely audience. And once again, a reminder, please download the Fitzo app. And I've already told you guys in the beginning of the video that we have wonderful things that are going on. And it actually helps you to see कि आप अपनी holistic health को कैसे manage कर रहे हैं. You don't have to go around to different people. You just have to download the app and you have all ready professionals right there, ready to help you out, ready to assist you out. And yeah, I hope we can now end the session. And some of these tricks, please do practice and let me know if they are helpful to you or not. Thank you, everyone.